In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. We're going to talk about organizational development. Organizational development का course is having macro level orientation, और इस सब्जेक्ट फील्ड में हमारे पास बहुत से एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाह रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस सिचुएशन से हम निकालना चाह रहे हैं. सो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए इस सब्जेक्ट फील्ड को वो डिस्कस किया जाता है, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न. और इस सब्जेक्ट फील्ड में हमारे पास जो मेजर एलिमेंट ऑफ फोकस होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूमन रिसोर्स. ओके, कि ह्यूमन एलिमेंट को एक सिस्टम डिज़ाइन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर हम किस तरीके से डेवलप करें जिससे कि हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वो अचीव हो सकें. सो वी फॉर्मली स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस subject from the book of Introduction to Organizational Development, written by Thomas G. Cummings and Christopher G. Worley. The title of the book is actually Organization Development and Change, and the chapter title is Introduction to Organization Development. The learning objectives which we are going to follow in this particular course are, number one, that will be there to define organizational development. Secondly, we'll be able to distinguish organization development and planned change from other forms of organization change, which are like in terms of crisis and likewise. The third main learning objective we're going to have out of this chapter is to describe the historical development of OD, के subject knowledge कैसे evolve हुआ with the passage of time. उसके बाद हम बात करेंगे to provide an outline of the book, and that is the whole discussion जो इस chapter में हमारी वो चलेगी. So first of all, we have got couple of definitions related to the organization development, because actually there is no one definition which can comprehend the whole scope of this subject domain. The first definition I have for you is from Brooks. The Brooks said that OD is a planned process of change. Okay, and I hope that after attending the change management and crisis management session, you are able to pick up this expression कि planned process जो है that is bit different from unplanned situation. So OD is a planned process of change in an organization's culture. Okay, अब यहाँ पर मैंने verbally intonate किया हुआ है this expression culture को. So it is important for us to first of all know what culture is. Okay, the simplest and the easiest expression I can have for the culture is that the culture is equal to structure plus human. Okay, एक structural design के ऊपर जब आप humans को hire करते हो तो that actually makes up the culture. अब उस culture को calculate करने के लिए we have got different models. For example, we have got cultural dimensions. Like you might have gone through this concept in the previous courses, that cultural dimensions can be outcome orientation, people orientation, aggressiveness, cooperation, attention to detail, right? So these are the cultural dimensions. These dimensions are like presented by Stephen P. Robbins in his book of Introduction to Management. इसके बाद हम later stage में in the advanced level discussion, जब हम cultural dimensions को calculate करना चाहते हैं तो we have another model which is known as cultural web. और जब हम कल्चरल वेब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव कंसर्न्स रिलेटेड टू द मिथ्स, द स्टोरीज, द हीरोज एंड हीरोइंस, द नॉर्म्स, द वैल्यूज, द पैराडिम. तो ये वाले जो वेरिएबल्स होंगे ये आपके पास इवॉल्व होने शुरू हो जाएंगे इन द डेवलपमेंटल डिस्कशंस रिलेटेड टू द कल्चरल वेब. ओके, सो आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर वन प्लान्ड चेंज प्रोसेस का पता होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको कल्चरल ओरिएंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर इज फॉस्टर्ड, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डेवलप्ड, एंड व्हाट कैन बी द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. बिकॉज अक्सर औकात आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आएगा दैट माइट बी कॉलिंग फॉर
कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस, जिसमें कि हम आपको जैसे मैंने डेवलपमेंट बताई थी ओडी की, कि बैकएंड के ऊपर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इस तरह के कोर्सेज मौजूद हैं। सो ये तमाम बिहेवियरल साइंस का जो नॉलेज है ये हम यूटिलाइज करते हैं इन द डिस्कशंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और उसमें ऑब्वियसली रिसर्च एंड थ्योरी की जो सपोर्ट है वो भी हमें दरकार होगी। Okay, so this is the like basic definition which is presented by Brooke, और अब इसको हम एक दफा कंप्लीट देख लेते हैं ताकि हमें पूरी कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाए कि OD is a planned process of change in an organization's culture through the utilization of behavioral science technology / terminology, research and theory. The second definition is coming from French. Okay, so French came up with an idea that organization development refers to a long range effort. ठीक है, जब हम इस सब्जेक्ट फील्ड की बात करते हैं तो इसमें आप लाइक ओवर द नाइट चेंज की बात नहीं करोगे. We would not be much talking about revolutionary change, rather we'll be more involved in evolutionary change. ठीक है, over a longer period of time. और इस पीरियड ऑफ टाइम को अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रिसर्च, तो यू विल कम टू नो कि इसको जो डिफाइन किया जाता है इस रेंज को, दैट इज समथिंग लाइक 3 years, 5 years, 10 years ड्यूरेशन. ओके, सो एक लंबे अरसे के अंदर आप इस चेंज के जो इफेक्ट्स होंगे उनको एक्चुअली देख पाओगे, राइट? सो इसका फर्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप डिफरेंस क्रिएट करते हो बिटवीन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक. ओके, टैक्टिक शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट रेंज होती है, जबकि जब स्ट्रेटजी का वर्ड हम यूज करते हैं तो इसका कंसर्न लॉन्ग रेंज होता है. बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और चेंज मैनेजमेंट में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि चेंज मैनेजमेंट कैन बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रेफर्स टू अ लॉन्ग रेंज एफर्ट. पहली बात तो ये क्लियर हुई कि इसमें वक्त की जो डिमांड है वो रिलेटिवली ज्यादा है. टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम से निकालना नहीं होता, ठीक है, हमने उनमें ऑर्गेनाइजेशनल जो मेंबरशिप है उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को भी इनकलकेट करना है ताकि उनके पास सेल्फ रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो आ सके. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस का जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि जब भी मसला होगा तो हम कंसल्टेंट को कॉल करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि आप हमें प्रॉब्लम का हल भी बताएं और आइंदा के लिए आप हमें ट्रेन एंड डेवलप भी कर दें ताकि अगर दोबारा वैसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम खुद से भी अपना जो इलाज है, अपनी जो करेक्शन है, अपनी जो डेवलपमेंट है वो कर सकें. तो फ्रेंच की डेफिनेशन के मुताबिक ओडी रेफर्स टू अ लॉन्ग रेंज एफर्ट टू इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड इट्स एबिलिटी टू कोप विद चेंज, एंड नॉट जस्ट अ चेंज बट द चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. क्योंकि बैरूनी दुनिया में जो तब्दीलियां हैं वो हर वक्त रूनुमा हो रही हैं. वी कैन काउंट लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, economic changes, socio-cultural changes, technological changes, demographic changes, behavioral changes. There are so many changes always taking place in the external environment of an organization. तो उन तमाम external organizational changes के साथ अपने आप को flexible रखते हुए update और upgrade करने के लिए we need to have the OD facility. Okay, so with the help of external and internal behavioral scientist who is actually the consultant. ओके, तो अब हम यहां पर इस बात का भी एनालिसिस करेंगे कि एक ओडी कंसल्टेंट को किन कैपेबिलिटीज की जरूरत होगी कि वो उन कैपेबिलिटीज के साथ, उन प्रोफिशिएंसीज एंड कॉम्पिटेंसीज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट एंड डेवलप वो कर सकता है. ओके, अब यहां पर हेल्प की हमें जरूरत क्यों है? इस डेफिनेशन में फ्रेंच ने हेल्प का एक्सप्रेशन यूज क्यों किया? बिकॉज अक्सर औकात प्रॉब्लम्स की नोयत इस किस्म की होती है, नोवेल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के पास शायद कैपेबिलिटी ना हो. तो दैट इज द रीजन कि दे नीड टू हायर द फैसिलिटी, दे नीड टू हायर द एक्सपर्टीज ऑफ द एक्सटर्नल कंसल्टेंट.
लेकिन फर्ज करें कि अगर वो कैपेबिलिटीज आपके पास एज ए ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर भी मौजूद हैं, तो देन अगेन आप उस मेंबर के तौर पर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए कंसल्टेंट ही काम करोगे, ठीक है? बिकॉज ये सिर्फ सलाह मशवरा नहीं होता, इसको आपको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर टेकअप करना पड़ता है, लाइक अ प्रोजेक्ट। ओके, उसके लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन होती है, और वो टीम फॉर्मेशन डायग्नोसिस, इंटरवेंशंस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इस तरह की जो डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास आएंगी, उन सबको प्लान करती है। So this is the typical definition coming from the French. इसको एक दफा हम complete अब पढ़कर देखते हैं कि OD refers to a long range effort to improve an organization's performance. Organizations की performance को improve करने के लिए organization's problem solving capabilities and its ability to cope with changes in its external environment with the help of external or internal behavioral scientist consultants. ठीक है? और इस कोर्स के एंड पर भी आपसे ये तवक्को की जाती है कि यू कैन और यू शुड बी वर्किंग एज ए कंसल्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर आपकी कंसल्टेंसी को बाकायदा पे किया जाएगा, और आप उस कंसल्टेंसी के जरिए ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम्स को हल करने की कैपेबिलिटी वो रखोगे। एंड ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग अपॉन द ह्यूमन एलिमेंट एज ए मेजर कंसर्न। Now, Beckhard came up with another definition. Okay, the Beckhard said that OD is an effort. Number one, that effort is planned. Number two, it is organization wide, because आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि it is a macro level concern we are going to talk about. तो ये किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक शख्स का इशू नहीं होगा, हमारा मेजर फोकस वुड बी होलिस्टिकली अप्लाइड, और जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंसर्न्स के ऊपर बात करेंगे। सो ओडी इज एन एफर्ट, नंबर वन इट इज प्लान्ड, नंबर टू इट इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, एंड नंबर थ्री मैनेज्ड फ्रॉम द टॉप। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि द चेंज प्रोसेस it has to be initiated from top, और अगर the top management is not concerned and involved and committed with the change, तो forget about कि आप कोई change वहां पर लेकर आ सकते हो। Okay, so it has to be managed from the top. Okay, to increase, number four, to increase organization effectiveness, that you have to go for doing the right things, and health, जिसमें कि आप उसकी सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटीज की भी बात करोगे, थ्रू नंबर फाइव प्लान्ड इंटरवेंशंस, कि आपके पास जो इंटरवेंशन पॉइंट्स आएंगे, जिसमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस इंटरवेंशन है, टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की इंटरवेंशंस आएंगी कि हम इन इंटरवेंशंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेसेस यूजिंग बिहेवियरल साइंस नॉलेज। तो ऑब्वियसली इसके बैकएंड के ऊपर आपके पास जो बिहेवियरल साइंस का जनरल नॉलेज है वो होना जरूरी है। जैसा इन द अर्लियर डिस्कशंस आई वाज टेलिंग यू कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जैसे कोर्स वर्क है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूटिंग फील्ड्स कौन सी थी बिहेवियरल साइंस की, उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो कंट्रीब्यूटिंग फील्ड्स थी, दे वर एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये सब आपकी जो फील्ड्स थी, दे वर ऑल देयर टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ओबी। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की स्टडीज के लिए भी हमें बिहेवियरल साइंस का नॉलेज बड़ा कंक्रीट लेवल के ऊपर वो रिक्वायर्ड है। ओके, जिसमें कि ओटी का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, ताकि आप उस प्लान्ड चेंज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो लेकर चल सको। Then we have Beer's definition. Okay, and the Beer is coming up with a more detailed concern related to the discussion. And the Beer said that OD is a system-wide process. Okay, again हम holistic बात कर रहे हैं, हम macro level की बात कर रहे हैं. So OD is a system-wide process of number one, data collection. Obviously आपने जब investigate करना है, आपने diagnose करना है, तो you have to collect a lot of data. So process of data collection. Through that data आप अगले स्टेप पर जाओगे, which is diagnosis. Once the diagnosis is done, then you come up with action planning. Once the action planning is done, then you come up with intervention. And once the intervention is defined, तो फिर आप उसको implement करते हो और वहां से आपके पास results जो हैं वो achieve होते हैं.
फिर उन रिजल्ट्स को यू टेक टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज इवेल्युएशन। तो हमारे पास जो इसकी स्टेजेस बनी, डेटा कलेक्शन, डायग्नोसिस, एक्शन प्लानिंग, इंटरवेंशन, आप एक और ऐड कर सकते हो विच इज इंप्लीमेंटेशन, और फिर वहां से हमारे पास इवेल्युएशन। तो बियर ने अब इस प्रोसेस को एलैबोरेट किया कि ओडी के अंदर हम एक्चुअली किन फेजेस से गुजर रहे होंगे, और उन तमाम फेजेस से गुजरने का मकसद क्या होगा। अकॉर्डिंग टू बियर उसने लिखा कि दीज आर ऑल एमिंग एट नंबर 1 enhancing congruence between organizational structure, process, strategy, people and culture। अब आप ये समझ लो कि इस एक जुमले के अंदर उसने वो पूरी ओडी की जो मेन डोमेन है उसको मर्ज कर दिया है कि हम कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद। अब हमने किस चीज को इन अकॉर्डेंस करना है, वी हैव टू मेक थिंग्स इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर, लाइक स्ट्रक्चर in congruence with process, process in congruence with strategy, strategy in congruence with people, and obviously all the things are in congruence with culture। और प्रॉब्लम आमतौर पर उस वक्त आती है जब हमें इन तमाम वेरिएबल्स के दरमियान कोई इनकम्पैटिबिलिटी वो मिल जाए। अब इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, आपका कल्चर स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है, आपके प्रोसेसेस स्ट्रेटेजी के मुताबिक नहीं है, आपके पीपल स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। सो अब इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। एंड एज ए यूज द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा लिटरेचर होगा, जो बिहेवियरल साइंस से हमारे पास नॉलेज आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डोमेन से, वो सारे का सारा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, सो अब इस पार्ट को हम फिर से देखते हैं कि आपने डेटा कलेक्शन करनी है, डायग्नोज करना है, आपने एक्शन प्लानिंग करनी है, आपने इंटरवेंशंस प्लान करनी है, आपने इवैल्यूएशन करना है, एम्ड एट नंबर 1 enhancing congruence between organizational structure, process, strategy, people and culture। यहां पर थोड़ी सी आपको मैं ब्रीफिंग और दे दूं कि जब हम बिहेवियरल साइंसेज में या मैनेजमेंट साइंसेज में वर्ड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर से मुराद 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 फिजिकल आउटलुक, नंबर 2 डिपार्टमेंट्स, एंड नंबर 3 हायरार्की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करते हैं तो इट वुड मीन 3 थिंग्स। फिजिकल आउटलुक, जैसे ईंट गारे की बिल्डिंग। नंबर 2 डिपार्टमेंट्स, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, अगर आपने फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की हुई है। और द थर्ड थिंग इज हायरार्की, जिसमें कि आप अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन पीपल, आप इन सब का जिक्र करते हो। और आपको बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स इस बात का पता होना चाहिए कि एक हायरार्की को स्टडी करने के लिए हमारे पास जनरली 7 वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एंड दोज वेरिएबल्स आर चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लाइंस ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, सो टिपिकली स्पीकिंग जब आप हायरार्की को डिजाइन करते हो, आप एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हो, तो उस ऑर्गेनोग्राम में आपको इन 7 वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करना वो जरूरी होगा। विदाउट नोइंग ऑल दीज 7 वेरिएबल्स आप एक स्ट्रक्चरल डिटेल एलैबोरेट नहीं कर सकते रिलेटेड टू द हायरार्की। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए इन 7 वेरिएबल्स को। चेन ऑफ कमांड, जिसका आप बेसिकली मतलब क्या बनाते हो, हु रिपोर्ट्स टू होम। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसके अंडर कितने लोग काम कर रहे होंगे। देन लाइंस ऑफ अथॉरिटी, कि आपने कितनी एम्पावरमेंट की हुई है। इसी तरह सेंट्रलाइजेशन, कि आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके, एक शख्स के पास है, कि आपने उसको डिसेंट्रलाइज्ड एम्पावरमेंट मेथड में यूज किया हुआ है। देन इट कैन बी फॉर्मलाइजेशन, कि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट हैं। देन इट कैन बी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजेंटल, ऑल चैनल, किस तरह का आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वहां पर, और कम्युनिकेशन मेथड्स एंड टेक्निक्स वो क्या हैं। एंड देन डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने वो किन बेसिस पर की हुई है। और जब आप बात करते हो डिपार्टमेंटलाइजेशन की, तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो हमारे पास बहुत से मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन भी आ जाएंगे। ओके, अब आप यहां पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को विजुअलाइज कर सकते हो कि अभी मैंने सिर्फ पहला वेरिएबल विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैं अभी सिर्फ उसकी डिटेल में आपको लेकर चल रहा हूं कि इसमें किस किस किस्म के इश्यूज आ सकते हैं। और इसमें वाज़ा करने का मकसद बेसिकली ये है उन वेरिएबल्स को कि इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाकर निटी ग्रिटीज को एवेल्युएट करके आपको ये देखना है कि कहीं पर कोई कॉन्ग्रुएंस का मसला तो नहीं है इन वेरिएबल्स का इन रिलेशन विद
ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, जिसमें कि तमाम तरह के डिपार्टमेंटल फंक्शनल प्रोसेसेस आपके आ जाएंगे, आपके वर्क फ्लोज आ जाएंगे, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, पीपल, उनसे रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली कल्चरल डायमेंशंस, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, इन सब की डिस्कशंस हमारे पास आ जाती हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट जो बियर ने अपनी डेफिनेशन में लिखा, ही सेड डेवलपिंग न्यू एंड क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल सोल्यूशन, कि हम सेकंड कोशिश ये करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन की तरफ लेकर जा सकें। एंड एज यू ऑल मे नो कि जब हम इनोवेशन का वर्ड यूज करते हैं तो वी आर कंसर्न विद कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन, दैट इज द लाइक फाइनेस्ट डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन, कि इनोवेशन इज बेसिकली कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन। तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड जो इनोवेशन है, उसके साथ जो एसोसिएटेड क्रिएटिविटी है, इन सब चीजों को आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करोगे। और ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या करना है, हमने सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी में लेकर जाना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन खुद से अपने आप को डेवलप वो कर सके। थर्ड पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर बियर ने हमारी तवज्जो मरकूज करवाई, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस सेल्फ रिन्यूअल कैपेबिलिटी, सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं। सो ये तीन एलिमेंट्स बियर ने प्रेजेंट किए। नंबर वन, इन कॉन्ग्रुएंस विद स्ट्रक्चर, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी, पीपल, कल्चर। नंबर टू, developing new which are innovative and creative organizational perspective, एंड नंबर 3 जिसमें कि हम सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी इसका जिक्र करते हैं। So the beer continues in his definition and says that it occurs through collaboration of organizational members working with a change agent who is like can be OD consultant, या वो एक separate person भी हो सकता है जो कि change agent का काम कर रहा होगा, with a change agent using behavioral science theory, research and technology। तो इन तमाम ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना वो हमारे लिए जरूरी है। ओके, अब इन तमाम डेफिनेशंस की रोशनी में हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं इन सम जर्नल फॉर्म। अगर हम जनरली, जो कमिंग ने अपनी किताब में डेफिनेशन लिखी, ही सेड कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट as a conclusion of the definitions, as an extract of the definition we have just gone through, he said that organization development is a system wide application, पहला एक्सप्रेशन आ गया, and transfer of behavioral science knowledge, दूसरी बात हो गई, to planned development, third step, for improvement and reinforcement of the strategies, ठीक है, structure and processes that lead to organization effectiveness। ओके, तो ये हमारे पास अब कंक्लूसिव डेफिनेशन आ रही है, जिस डेफिनेशन को बेस बनाकर हम अपने रेस्ट ऑफ द कोर्स डेवलपमेंट को वो लेकर चलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ सिस्टम वाइड एप्लीकेशन होगी, हम ट्रांसफर ऑफ बिहेवियरल साइंस नॉलेज करेंगे प्लान डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए और रीइंफोर्स करने के लिए स्ट्रेटजीज को इन कॉन्ग्रुएंस विद स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, जिनसे के ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस वो क्रिएट हो सके। एंड ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस के साथ एसोसिएटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो ये आपके मेजर कंसर्न्स हैं जिनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल कर रही है, और यही वो फैक्टर्स हैं जिससे कि उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, सस्टेनेबिलिटी और अबव एवरेज रिटर्न मिलने के चांसेस वो भी होंगे। राइट डियर? If there is any question, you can put it into the chat room. अब ओडी को जब हम गो थ्रू करते हैं, उसकी डिटेल को जब हम विजुअलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स वी नीड टू फोकस अपॉन। फॉर एग्जाम्पल, ओडी के कंसर्न में हमारा मेजर फोकस इज ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशंस। हमारी ओरिएंटेशन would be related to achieving results as a consequence of planned activities,
And those results are obviously not only just solving the problem but also making the organizations capable of self renewal aspects. हमारा टारगेट जो होगा दैट वुड बी द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एज वी आर एनरोल्ड इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो हम ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपना मेजर फोकस वो करेंगे. नो डाउट हमारे अदर पर्सपेक्टिव्स भी डिस्कस हो रहे होंगे, उसमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, उसमें ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, उसमें मार्केटिंग पर्सपेक्टिव्स भी हैं, लेकिन हम अपनी ज्यादा डिटेल को इन रिलेशन विद द ह्यूमन एलिमेंट इन द सिस्टम वो लेकर चलेंगे. और हमारी जो सेटिंग होगी दैट वुड बी द रियल ऑर्गेनाइजेशंस इन द रियल वर्ल्ड. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कोर्स में वी जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द थ्योरेटिकल एजम्पशंस, इसमें हमें प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट होके इसकी अप्लाइड साइड को वो देखना होता है. और यही जो स्टेप्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी द मेजर कंटेंट्स ऑफ योर एंड टर्म प्रोजेक्ट. ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने ग्रुप्स फॉर्मेट कर लें, ग्रुप्स फॉर्म कर लें, 4 to 5 स्टूडेंट्स ईच ग्रुप, और 4 to 5 स्टूडेंट्स जो अपना ग्रुप बनाएंगे, आप लोग वुड बी एक्टिंग एज एन ओडी कंसल्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर इन्हीं तमाम स्टेप्स को आपको एक्चुअली लेकर चलना है. और फिर इवेंचुअली जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, उनको डायग्नोज करना है, उनके बारे में एक्शन प्लान्स बनाने हैं, इंटरवेंशंस क्रिएट करनी है, चेंज को वहां पर इंस्टीट्यूशनलाइज करना है. तो ये तमाम आपके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी वो चलेंगे. सो विल ट्राई टू मेक दिस कोर्स एज प्रैक्टिकल एज वी कुड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तो अब इसकी कुछ फर्दर डिटेल में मैं आपको